Hello, welcome students. Uh, this chapter was covered in previous class, so you need to do the exercise of this chapter. Please go through the solved questions. These are very important. That is, what is the difference between keyword and identifier? What is literal in Python? What are the different literals available in Python? What do you mean by the escape sequences like /a, etc.? And how many types of string are supported in Python? Single line string, multi-line string, what is document string, that is doc string. What factors guide the choice of the identifiers in program? How can you create multi-line string? Always identify the type of following literal like 23.789. This is floating point. 23789, this is integer, and so on. So please go through these questions and then answer the unsolved questions which is given here, like what are tokens in Python, how many types of tokens are allowed in Python. Exemplify your answer. So here you need to explain the Python tokens, their types and examples. How a keyword different from identifier, it is already given in the solve part. What are literals in Python, it is also given in solve part. Can non-graphic character be used in Python? Yes, it can be used. How it can be used, and give example to support your answers. How are floating constraint represented in Python? So please complete the exercise questions, and these are application based question. First you need to execute it. Write the code, execute it in your mobile phone or computer, and then answer them according to that. Please complete this exercise, and in case of any doubt we will actually discuss each and every question in detail, if in case you all having doubt. So I am going to start the next lesson, that is data handling in Python. I am going to send this PDF to your group too. Now data handling, so how we can handle data, that is what is the concept of data type, operators, expressions, how we can form expression. So we are going to discuss these topics in detail in this lesson. The first thing which comes here is the concept of data type. So data can be of many type. Example, it can be character, integer, real, string, etc. Anything enclosed in quotation represent a string data in Python. We have already discussed it in previous lesson कि अगर कोई भी चीज़ हम सिंगल कोट या डबल कोट के अंदर रख देते हैं तो वो स्ट्रिंग टाइप का हो जाता है. नंबर्स विदाउट फ्रैक्शंस रिप्रेजेंट इंटीजर डेटा. अगर कोई मान लो नंबर है जिसमें कोई फ्रैक्शन नहीं दिया है तो वो इंटीजर डेटा को रिप्रेजेंट करता है. नंबर विथ फ्रैक्शन रिप्रेजेंट रियल डेटा या फ्लोटिंग पॉइंट डेटा. ट्रू फॉल्स रिप्रेजेंट्स बुलियन डेटा. तो ये जो डिफरेंट लिटरल्स थे आपने प्रीवियस लेसन में देखा था, उसी के आधार पे हमारी जो डेटा टाइप्स हैं वो डिफाइन होती हैं. तो सिंस डेटा टू बी डेल्ट विथ आर ऑफ मेनी टाइप, अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज मस्ट प्रोवाइड वेज टू फैसिलिटेट्स टू हैंडल ऑल टाइप्स ऑफ डेटा. तो चूँकि जो डेटा हम अपने प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में यूज़ करते हैं, प्रोग्रामर्स के द्वारा यूज़ की जाती है, वो बहुत अलग अलग टाइप की हो सकती है. इसीलिए यहाँ पे जो डेटा टाइप का कॉन्सेप्ट है वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि डेटा टाइप के आधार पे ही ये डिफ़ाइन होता है कि हम किस तरीके से अलग अलग टाइप के डेटा को हैंडल करेंगे. Before you learn how you can process different types of data in Python, let us discuss various data types supported in Python. So in the discussion of data type, you will be able to know Python capabilities to handle a specific type of data such as memory space, it allocate to,
hold a certain type of data, range of values supported by the data type etc. तो अब आप देखने जा रहे हैं कि डेटा टाइप की रेंज क्या होती है, कितना मेमोरी बाइट, कितना मेमोरी एलोकेशन इसके लिए होता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद द डिफरेंट कोर डेटा टाइप अवेलेबल इन पाइथन। तो इफ़ वी से कि पाइथन is a rich set of language in terms of data type, तो it is a true statement। तो Python offers following built-in core data type: numbers, string, list, tuple and dictionary। तो these are the 5 basic data type available in Python। तो we are going to start with the first one, that is numbers। तो numbers, as it is clear by name, the number data type are used to store numeric values in Python। That means if we want to store numeric value, we use numbers। The numbers in Python have the following core data type: integer, जो जिसको हम बोलते हैं सिंपल इंटीजर, इंटीजर साइंड, बुलियन, फ्लोटिंग पॉइंट नंबर एंड कॉम्प्लेक्स नंबर्स। तो ये लिटरल्स पार्ट में आपने प्रीवियस लेसन में इनके बारे में बेसिक अंडरस्टैंडिंग ली थी, यहाँ पे हम इसको डिटेल से देखने जा रहे हैं। तो हियर वी शैल वी टॉक अबाउट ओनली इंटीजर्स एंड फ्लोटिंग पॉइंट नंबर ब्रीफली, बिकॉज कवरिंग द कॉम्प्लेक्स नंबर इज़ बियॉन्ड द स्कोप ऑफ योर सिलेबस। तो फर्स्ट इंटीजर, तो इंटीजर्स आर होल नंबर्स, ये पूर्ण संख्याएं होती हैं, सच एज 5, 39, 1970, 0 एट्सेट्रा। दे हैव नो फ्रैक्शनल पार्ट, मतलब इसमें दशमलव के बाद की संख्याएं नहीं होती हैं। इंटीजर्स आर रिप्रेजेंटेड इन पाइथन बाय न्यूमेरिक वैल्यूज़ विथ नो डेसिमल पॉइंट। इंटीजर कैन बी पॉजिटिव और नेगेटिव। पॉजिटिव में प्लस साइन लगा हो या ना लगा हो, नंबर को हम पॉजिटिव मानते हैं। लाइक इफ़ वी राइट +12 और ओनली 12, बोथ represent the positive value 12, but if we explicitly write -15, that means this value is negative। तो missing plus or minus symbol means it is positive number। Now there are two type of integer in Python: integer signed and integer and boolean। तो integer sign की अगर हम बात करें तो it is a normal integer representation of whole numbers। ये नॉर्मल रिप्रेजेंटेशन होता है इंटीजर इन पाइथन 3.x जो आप यूज़ कर रहे हो। कैन बी ऑफ एनी लेंथ, कितना भी बड़ा इंटीजर वैल्यू हम यहाँ पे रख सकते हैं। अब देखो यही हमारे पाइथन को बाकी लैंग्वेजेस से अलग बनाती है, क्योंकि बाकी लैंग्वेजेस में लिमिट होता है कि हम कितना बड़ा नंबर एज अ इंटीजर रख सकते हैं, लेकिन यहाँ पे कोई लिमिट नहीं होती है, आप कितना भी बड़ा नंबर एज अ इंटीजर वैल्यू आप रख सकते हैं। इट इज़ ओनली लिमिटेड बाई द मेमोरी अवेलेबल। ये केवल लिमिटेड होता है कि आपके कंप्यूटर में कितनी मेमोरी अवेलेबल है, उतना बड़ा आप इंटीजर वैल्यू रख सकते हैं। दैट इज़ वेरी वेरी ह्यूज वैल्यू दैट वी कैन प्रोसेस विद द हेल्प ऑफ पाइथन। अनलाइक अदर लैंग्वेजेस, पाइथन 3.x प्रोवाइड सिंगल डेटा टाइप इन टू स्टोर इंटीजर वेदर बिग और स्मॉल। अगर छोटा भी वैल्यू है तो भी इंटीजर से ही रिप्रेजेंट करेंगे, और बहुत बड़ी वैल्यू है उसे भी हम इंट से ही रिप्रेजेंट करेंगे। इट इज़ साइंड रिप्रेजेंटेशन, दैट इज़ द इंटीजर कैन बी पॉजिटिव एज वेल एज नेगेटिव। नाउ द नेक्स्ट थिंग इज़ बुलियन। तो बुलियन देखो मैंने बताया था आप लोगों को बुलियन लिटरल्स में कि दीज कैन रिप्रेजेंट टू वैल्यूज़ ईदर ट्रू और फॉल्स। तो these represent the truth value, false and true। The boolean type is a subtype of plain integer, and boolean value false and true behave like boolean like values 0 and 1, where 0 represent false and 1 represent true respectively। To get the boolean equivalent of 0 and 1, you can type bool 0 and bool 1। The Python will return false or true respectively। तो इसको अगर मैं प्रैक्टिकली आपको डिमॉन्स्ट्रेट करना चाहूँ विद द हेल्प ऑफ क्यू पाइथन विच इज़ अवेलेबल हियर, तो क्यू पाइथन में मैं कंसोल मोड में चलता हूँ, और कंसोल मोड में आके मुझे यहाँ पे टाइप करना है। तो मैंने यहाँ पे टाइप कर दिया
बूल मैंने यहाँ पे टाइप किया बूल ब्रैकेट में 0 और एंटर की प्रेस किया। यहाँ पे कॉमा लग गया है, दैट इज़ सिंटैक्स एरर। तो मुझे यहाँ पे प्रॉपर्ली टाइप करना होगा BOOL एंड देन इन ब्रैकेट 0 ब्रैकेट क्लोज, एंटर की, it will represent false, and if we write bool and in bracket 1, तो boolean 0 will represent false and boolean 1 will represent true value। तो ये आप देख सकते हैं, यहाँ पे ऑब्ज़र्व कर सकते हैं। नाउ मूविंग फॉरवर्ड, अगर हम जैसे बूल 0 रख रहे हैं तो ट्रू आ रहा है, बूल 1 रख रहे हैं तो फॉल्स आ रहा है। इसी तरीके से आगे अगर हम बढ़ें कि हाउएवर व्हेन यू कन्वर्ट बुलियन वैल्यू फॉल्स एंड ट्रू टू स्ट्रिंग, द स्ट्रिंग फॉल्स एंड ट्रू आर रिटर्न। तो अगर हम बुलियन वैल्यू को हम कन्वर्ट करना चाहते हैं स्ट्रिंग में, तो उसके लिए str फंक्शन यूज़ करते हैं। और str यहाँ पे अगर हमने दिया फॉल्स और ब्रैकेट क्लोज कर दिया, तो इस केस में आप देखेंगे कि इट इज़ नॉट रिप्रेजेंटिंग, वेट 1 मिनट, ओके। तो हियर आई एम मेकिंग वन मिस्टेक कि यहाँ पे जो ट्रू और फॉल्स है, मैंने बताया था पाइथन इज़ अ केस सेंसिटिव लैंग्वेज, तो यहाँ पे f जो होगा वो कैपिटल होगा एंड देन मैंने ब्रैकेट बंद किया, एंटर किया, तो आप देख सकते हैं ये फॉल्स वैल्यू रिटर्न कर रहा है। लेकिन फॉल्स क्या है, सिंगल कोट में आ रहा है, तो सिंगल कोट में आ रहा है इसका मतलब क्या है कि ये स्ट्रिंग वैल्यू हो गई। ऐसे ही अगर मैं लिखूँ str एंड देन इन ब्रैकेट कैपिटल TRUE और उसके बाद ब्रैकेट क्लोज किया, तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे ट्रू सिंगल कोट में रिटर्न हो रहा है। इसका मतलब ये है कि ये स्ट्रिंग वैल्यू को रिटर्न कर रहा है, मतलब 0 और 1 को रिटर्न नहीं कर रहा है। आगे बढ़ते हैं हम। नेक्स्ट थिंग इज़ फ्लोटिंग पॉइंट नंबर्स। तो देखो फ्लोटिंग पॉइंट नंबर्स में कि अ नंबर हैविंग फ्रैक्शनल पार्ट इज़ अ फ्लोटिंग पॉइंट नंबर। For example, 3.145159 is a floating point number. The decimal point signal that it is a floating point number, not an integer. The number 12 is an integer, but 12.0 is a floating point number. तो इस तरीके से आप इसको रिप्रेजेंट कर सकते हो कि नंबर 12 हमारा इंटीजर है और 12.0 हमारा फ्लोटिंग पॉइंट नंबर है। तो अगर कहीं पे भी डेसिमल पॉइंट लगा हुआ है तो उसको आप कंसिडर कर सकते हैं कि इट इज़ अ फ्लोटिंग पॉइंट नंबर। नाउ रिकॉल फ्रॉम लिटरल वैल्यू डिस्कशन इन द प्रीवियस चैप्टर, द फ्रैक्शनल नंबर कैन बी रिटन इनटू 2 फॉर्म्स, दैट इज़ फ्रैक्शनल फॉर्म और एक्सपोनेंट फॉर्म। तो 2 फॉर्म होते हैं हमारे फ्रैक्शनल नंबर्स के, फ्रैक्शनल फॉर्म होता है और एक्सपोनेंट नोटेशन होता है। इन फ्रैक्शनल फॉर्म जो नॉर्मल रिप्रेजेंटेशन होता है उसमें 2 पार्ट होते हैं, एक पॉइंट के पहले और एक पॉइंट के बाद। लाइक एग्जाम्पल यू कैन सी 3500 दैट इज़ 3500.75, 0.00005, 147.9101 etc. And in exponent notation we will have 2 things. First, a floating point number and then an integer value, and both are separated by e, where जो पहले वाला जो पार्ट है e से पहले का, इसको बोलते हैं मैंटिसा, और e के बाद वाले पार्ट को हम बोलते हैं एक्सपोनेंट। लाइक 3.50075 e03, 0.5 e-04 एंड सो ऑन। तो ये जो वैल्यूज़ होती हैं इनको हम एक्सपोनेंट नोटेशन बोलते हैं। अगर मैं इसको यहाँ पे रिप्रेजेंट करूँ आपको, तो कंसोल स्क्रीन पे पहले मैं थोड़ा टाइप के बारे में डिस्कस कर लूँ।
कि अगर मान लो हमने एक वेरिएबल बनाया है a और उसमें हमने वैल्यू डाली 595 और मैं देखना चाहता हूँ इसका टाइप क्या है, तो उसके लिए मुझे यहाँ पे लिखना होगा टाइप ब्रैकेट में a। अब अगर मैं एंटर की प्रेस करूँ, आप देख सकते हैं इसका टाइप इंटीजर टाइप का है। अगर मैंने मान लो यहाँ पे लिया b इज़ इक्वल्स टू 89632.986523 एंटर किया, b हमारा वेरिएबल डिफाइन हो गया। अगर मैं यहाँ पे लिखूँ टाइप एंड देन इन ब्रैकेट b, तो इस केस में आप देखेंगे इसका जो टाइप है वो फ्लोट टाइप का है। अब यहाँ पे जो अभी हमने b में वैल्यू असाइन की है 895632.98 समथिंग, तो दिस इज़ फ्रैक्शनल फॉर्म रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ फ्लोटिंग पॉइंट नंबर। अगर मैं यहाँ पे लिखूँ c इज़ इक्वल्स टू 58365.08 e -04। अगर मैं यहाँ पे भी टाइप की बात करूँ कि मैंने यहाँ लिखा टाइप एंड इन ब्रैकेट c ब्रैकेट क्लोज, तो अगेन इट विल रिटर्न फ्लोट एज अ डेटा टाइप। बट अगर मैं यहाँ पे c को रिप्रेजेंट करूँगा तो आप देख सकते हैं रिज़ल्ट आ रहा है 5.836580। ये इसलिए हो रहा है क्योंकि e का बेस होता है 10 और ये हो जाएगा 58365.08 मल्टीप्लाई बाई 10 टू द पावर ऑफ -4। तो 10 टू द पावर ऑफ -4 मतलब यहाँ पे हम क्या करेंगे, 1000 से डिवाइड करेंगे, तो जो डिजिट होगी वो 1 2 3 4, 1000 ने 10,000 से डिवाइड करेंगे तो जो डिजिट होगी वो 4, जो डेसिमल पॉइंट है वो 4 पॉइंट शिफ्ट हो जाएगी इन फ्रंट। अगर हम यहाँ पे d इज़ इक्वल्स टू लिखें और मैंने यहाँ पे लिखा d इज़ इक्वल्स टू 0.0059 और फिर मैंने रखा यहाँ पे e। अब यहाँ मैं पॉजिटिव वैल्यू दे रहा हूँ 0.4। अब इस केस में अगर आप देखें और d को रिप्रेजेंट करें तो यहाँ पे रिज़ल्ट आ रहा है 59, क्योंकि इस केस में ये हो जाएगा 0.0059 मल्टीप्लाई बाई 10 टू द पावर ऑफ 4। तो यहाँ पे 10 टू द पावर ऑफ 4 से मल्टीप्लाई होगा और आपको 59 एज अ रिज़ल्ट मिलेगा। तो e करके अगर हम कोई वैल्यू देते हैं तो वो बेस 10 को रिप्रेजेंट करता है, उसके बाद की जो वैल्यू होती है वो उसके पावर को रिप्रेजेंट करता है, और पावर नेगेटिव भी हो सकती है और पॉजिटिव भी हो सकती है। नेगेटिव है तो उतने से डिवाइड होगा और पॉजिटिव है तो उतने से मल्टीप्लाई होगा। आगे बढ़ते हैं, देखिए यहाँ पे फ्लोटिंग पॉइंट वेरिएबल रिप्रेजेंट रियल नंबर्स which are used for measurable quantities like distance, area, temperature, etc. and typically have a fractional part. Floating point numbers have two advantage over integers. पहला एडवांटेज है they can represent values between the integer, like अगर हम इंटीजर से कोई वैल्यू रिप्रेजेंट करें तो अगर हम रिप्रेजेंट करें 5 और उसके बाद की नेक्स्ट वैल्यू होगी 6, लेकिन अगर हम 5 और 6 के बीच की कोई वैल्यू रिप्रेजेंट करना चाहते हैं तो दैट कैन नॉट बी रिप्रेजेंटेड बाय इंटीजर्स, दैट कैन बी रिप्रेजेंटेड ओनली बाय फ्लोटिंग पॉइंट नंबर लाइक 5.001, 002, 003 एंड सो ऑन टू 5.9999 समथिंग लाइक दैट। दे कैन रिप्रेजेंट अ मच ग्रेटर रेंज ऑफ वैल्यू। ये तो आप समझ ही सकते हैं कि बिकॉज इट कैन रिप्रेजेंट वैल्यूज़ बिटवीन टू इंटीजर्स, सो इट कैन रिप्रेजेंट अ वाइड range of values. But floating point numbers suffer from one disadvantage also, and the disadvantage is floating point operation are usually slower than integer operation. जैसे अगर आपको ही कैलकुलेट करना हो इंटीजर और इंटीजर में मल्टीप्लाई करना हो, डिवाइड करना हो, तो दैट इज़ फास्ट. But if decimal point is involved, so at that time you also going to take time. At the same time computer will also take some extra time to calculate if the number is floating type. In Python, floating point number represent machine level
डबल प्रिसीजन फ्लोटिंग पॉइंट नंबर्स दैट इज़ 15 डिजिट प्रिसीजन, मतलब क्या होगा, दशमलव के बाद 15 डिजिट तक की वैल्यू को आप स्टोर कर सकते हैं। द रेंज ऑफ दीज नंबर इज़ लिमिटेड बाई अंडरलाइंग मशीन आर्किटेक्चर सब्जेक्टेड टू अवेलेबल वर्चुअल मेमोरी। तो आगे बढ़ते हैं। ये देखिए, ये तीन हमारे डेटा टाइप हैं, इंटीजर है, बुलियन है और फ्लोट है। नाउ मूविंग फॉरवर्ड, नेक्स्ट थिंग इज स्ट्रिंग। तो स्ट्रिंग के बारे में भी आपने देखा था कि अगर कोई भी चीज़ हम सिंगल कोट या डबल कोट के अंदर पास कर देते हैं तो ऑल दोज आर रिप्रेजेंटेड एज स्ट्रिंग। तो you already know about string as data in Python. In this section we will talk about Python data type string. A string data type lets you hold string data, that is any number of valid characters, into a set of quotation marks. मतलब यहाँ पे मस्ट है कि you must enclose the value in single quote or double quote, that is quotation marks. In Python 3.x, each character stored in a string is Unicode character. जो भी कैरेक्टर हम यहाँ पे स्टोर करते हैं वो यूनिकोड कैरेक्टर होता है पाइथन के अंदर। और इन अदर वर्ड, ऑल स्ट्रिंग इन पाइथन 3.x आर सीक्वेंस ऑफ प्योर यूनिकोड कैरेक्टर्स। Unicode is system designed to represent every character from every language. A string can hold any type of known character, like it can hold letters, numbers, special character of any known scripted language। तो आप कोई भी चीज़ स्ट्रिंग में स्टोर कर सकते हैं। जैसे आप यहाँ देख सकते हैं डबल कोट में ABCD, ये भी स्ट्रिंग है। डबल कोट में 1 2 3, ये भी स्ट्रिंग है। डबल कोट या सिंगल कोट में आप देखो डॉलर, परसेंट सिंबल, कैरेट, %, हर चीज़ अगर जो आप चाहें वो आप स्ट्रिंग में स्टोर कर सकते हैं। नाउ स्ट्रिंग एज अ सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर। अब अगर हम बात करें स्ट्रिंग, तो स्ट्रिंग क्या होती है, कैरेक्टर्स का सीक्वेंस होती है। अब यहाँ पे स्ट्रिंग के बारे में आप थोड़ा डेप्थ में देखेंगे तो अ पाइथन स्ट्रिंग इज अ सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर एंड ईच कैरेक्टर कैन बी इंडिविजुअली असेस्ड यूजिंग इट्स इंडेक्स। तो स्ट्रिंग के अंदर कोई भी वैल्यू अगर हम रखते हैं तो उसका एक इंडेक्स होता है और इंडेक्स नॉर्मली स्टार्ट होता है 0 से, और उस इंडेक्स के आधार पे स्ट्रिंग के इंडिविजुअल कैरेक्टर्स को आप एसेस कर सकते हैं। तो लेट अस फर्स्ट स्टडी द इंटरनल स्ट्रक्चर और कंपोजिशन ऑफ पाइथन स्ट्रिंग। इट विल फॉर्म द बेसिस ऑफ ऑल लर्निंग ऑफ वेरियस स्ट्रिंग मैनिपुलेशन कॉन्सेप्ट। String in Python are stored as individual character in contiguous location with two-way index for each location. हर एक लोकेशन का 2 इंडेक्स होता है, 2 तरफ का इंडेक्स होता है, एक फॉरवर्ड डायरेक्शन में, एक बैकवर्ड डायरेक्शन में। फॉरवर्ड डायरेक्शन में जो इंडेक्स होता है वो पॉजिटिव होता है और बैकवर्ड डायरेक्शन का जो इंडेक्स होता है वो नेगेटिव होता है। द इंडिविजुअल एलिमेंट ऑफ स्ट्रिंग आर द कैरेक्टर कंटेंट इन इट that is stored in contiguous memory location. contiguous मतलब बढ़ते हुए क्रम में, एक के बाद एक। and as mentioned the characters of string are two-way index for each location. let us understand this concept with the help of an example. तो सपोज कीजिए कि एक स्ट्रिंग है, नेम, उसमें हमने वैल्यू रखा है पाइथन। तो जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं कि इसकी जो इंडेक्सिंग है वो 2 टाइप की होगी, फॉरवर्ड इंडेक्सिंग और बैकवर्ड इंडेक्सिंग। फॉरवर्ड इंडेक्सिंग में आप देख सकते हैं कि 0 1 2 3 4 5 ये हमारे इंडेक्सेस हैं, ये 0 से स्टार्ट होता है और आगे बढ़ता है। और बैकवर्ड डायरेक्शन में इसकी इंडेक्सिंग होती है -1 -2 -3 -4 -5 -6। अब अगर आप इंडिविजुअल एलिमेंट को एसेस करना चाहते हैं तो आप इस तरीके से लिख सकते हैं, नेम 0 तो ये P को रिप्रेजेंट करेगा, नेम 1 Y को रिप्रेजेंट करेगा, नेम 2 T को रिप्रेजेंट करेगा, नेम 3 H को रिप्रेजेंट करेगा, एंड सो ऑन। और अगर आप नेगेटिव वे में अगर आप देखना चाहते हैं तो नेम -6 रिप्रेजेंट करेगा P को, नेम -5 रिप्रेजेंट करेगा Y को, एंड सो ऑन। तो आई एम गोइंग टू डिमॉन्स्ट्रेट इट विथ द एग्जाम्पल। तो देखिए, अगर हम यहाँ पे इसको एग्जाम्पल के द्वारा डिमॉन्स्ट्रेट करें तो मान लो हमने एक वेरिएबल ले लिया नेम, और नेम इज़ इक्वल्स टू, मैंने यहाँ पे वही सेम वैल्यू रखी है कि मैंने डबल कोटेशन मार्क में पास कर दिया पाइथन, तो PYTHON, एंड आई हैव क्लोज द डबल कोटेशन मार्क। अगर हम केवल नेम को प्रिंट करें, यहाँ पे नेम को प्रिंट करें
तो आप देखेंगे पाइथन एज अ स्ट्रिंग हमारा डिस्प्ले हो रहा है। लेकिन अगर हम नेम फिर यहाँ पे अगर स्क्वायर ब्रैकेट लगा के और वैल्यू पास कर दें यहाँ पे हम 0 और हमने स्क्वायर ब्रैकेट को क्लोज कर दिया, तो नेम 0 विल रिप्रेजेंट p। ऐसे ही अगर हम लिखेंगे नेम इन स्क्वायर ब्रैकेट 1, तो इट इज़ गोइंग टू रिप्रेजेंट y। ऐसे ही अगर हमने लिखा मान लो नेम एंड देन इन स्क्वायर ब्रैकेट अगर मैंने यहाँ पे रखा 5, तो ये रिप्रेजेंट कर रहा है एरर को, क्योंकि PYTHON यहाँ पे कुछ मिस्टेक मैंने किया है, एक बार मैं देख लूँ फिर से। नेम एंड देन इन ब्रैकेट मैं यहाँ पे 4 डाल के देखूँ एक बार, तो इट विल रिप्रेजेंट O एंड यहाँ पे फिर मैंने लिखा नेम एंड देन ब्रैकेट 5, तो इट विल रिप्रेजेंट N। यहाँ पे मैंने 5 को अपने कीपैड में गलत तरीके से टाइप कर दिया था, इसीलिए ऊपर एरर आ रहा था। तो जैसे 0 विल रिटर्न P, 1 पे Y है, ऐसे ही 4 पे O है और 5 पे N है। अगर मैं बैकवर्ड डायरेक्शन में इसको एसेस करने की कोशिश करूं, तो अगर हमने यहाँ पे लिखा ब्रैकेट में -1, तो -1 लास्ट एलिमेंट को रिटर्न करेगा और लास्ट एलिमेंट हमारा है N। ऐसे ही अगर मैं यहाँ लिखूँ नेम और ब्रैकेट यहाँ पे लगा के मैंने पास किया -6, तो -6 विल रिटर्न P। तो नेगेटिव डायरेक्शन क्या होता है, बैकवर्ड एसेसिंग होती है, और पॉजिटिव डायरेक्शन में जब हम चलते हैं तो फॉरवर्ड हम नंबर्स देते हैं। तो फॉरवर्ड के केस में इंडेक्स होता है 0 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन, और नेगेटिव में होता है -1 -2 -3 एंड सो ऑन। तो इस पे भी बच्चों एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि सपोज दैट कि देयर इज़ अ वेरिएबल a विच इज़ हैविंग वैल्यू इन सिंगल कोट आर्मी पब्लिक स्कूल। एक मिनट, a इज इक्वल्स टू इन ब्रैकेट सॉरी इन सिंगल कोट, यहाँ पे देखिए ये इस एडिटर की मिस्टेक है जिसके कारण ये एरर आ रहा है। तो मैंने यहाँ पे फिर अगेन रखा a इज इक्वल्स टू सिंगल कोटेशन मार्क में आर्मी पब्लिक स्कूल, और यहाँ पे मैंने कोट को क्लोज कर दिया, ये हमारा डिफाइन हो गया। अब यहाँ पे पूछा जा रहा है कि स्कूल में जो S है उसको अगर हम रिटर्न करना चाहते हैं, स्कूल के S को रिटर्न करना चाहते हैं, तो उसके लिए हम कौन सा स्टेटमेंट यूज़ करेंगे। तो इसके लिए मैं यहाँ पे यूज़ कर सकता हूँ A एंड इन ब्रैकेट, अब काउंट कर लीजिए 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। तो मैं यहाँ पे दे सकता हूँ A12। देखो A12 क्यों हो रहा है, अब आप लोगों को ये लग रहा होगा कि कैरेक्टर वाइज तो हम जब एसेस कर रहे हैं तो ये 12th नहीं आ रहा है। एक्चुअली स्पेस को भी हम यहाँ पे काउंट करते हैं। ऐसे ही अगर हम बैकवर्ड डायरेक्शन में लेके चलें, तो बैकवर्ड डायरेक्शन में हम लिखेंगे A इन ब्रैकेट नेगेटिव वैल्यू हम देना, अगर हमें देना है तो नेगेटिव। अब देखिए लास्ट में एक स्पेस हमने रखा है, तो -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7,
तो यहाँ पे वैल्यू होगी -7 और फिर मैं यहाँ पे इस ब्रैकेट को क्लोज़ करूँगा। आप देखेंगे अगेन हमें वैल्यू रिटर्न होगी s। तो ऐसे ही कभी आपके एग्ज़ाम में भी दे सकता है कि एक स्ट्रिंग दिया हुआ है और उसमें आपसे बोलेगा कि इस पर्टिकुलर एलिमेंट को एक्सेस करने के लिए, इस पर्टिकुलर कैरेक्टर को एक्सेस करने के लिए हम क्या करेंगे। तो होप यू ऑल अंडरस्टैंड इट। नाउ मूविंग फॉरवर्ड, तो यहाँ पे आगे हम बढ़ते हैं। जैसे एक और एग्जांपल दिया है कि लेट अस कंसीडर अनदर स्ट्रिंग से सब्जेक्ट इज इक्वल्स टू कंप्यूटर्स। तो कंप्यूटर्स ऐसे एज एन एरे स्टोर होगा, तो COMPUTERS का इंडेक्स होगा 0 1 2 एंड सो ऑन टू 8 फॉरवर्ड डायरेक्शन में, -1 से -9 तक बैकवर्ड डायरेक्शन में। अब अगर सब्जेक्ट 0 हम रिप्रेजेंट करेंगे तो ये C को रिप्रेजेंट करेगा, सब्जेक्ट 2 अगर हम कहेंगे तो M को रिप्रेजेंट करेगा एंड सो ऑन। ऐसे ही सब्जेक्ट -1 अगर हम कहेंगे तो लास्ट वाला S रिप्रेजेंट होगा। सब्जेक्ट -7 हम कहेंगे, जैसे मान लो अगर हम सब्जेक्ट -7 हम कहते हैं तो वो इस M को रिप्रेजेंट करेगा। सब्जेक्ट -1 अगर हम कहेंगे तो ये S को रिप्रेजेंट करेगा। सब्जेक्ट -9 करेंगे तो वो इस C को रिप्रेजेंट करेगा। तो दिस इज हाउ द स्ट्रिंग वर्क्स। तो प्लीज़ ट्राई टू एग्जीक्यूट इट in your computer, try to work on it, and in case of any doubt you may ask। अब इसमें एक चीज़ और होती है जो मैं यहाँ पे आपको बता दूँ कि जैसे मान लो ये हमारा स्ट्रिंग है, जैसे नेम नाम का स्ट्रिंग था। अगर हम नेम को डिस्प्ले करें, फिर यही मिस्टेक हो रही है इसमें, नेम को अगर हम डिस्प्ले करें तो ये पाइथन आ रहा है। अब अगर हमने लिखा नेम 0 इज इक्वल्स टू इन सिंगल कोट M, कोड को क्लोज किया, एंटर की प्रेस किया, तो देखिएगा ये काम स्ट्रिंग के साथ नहीं हो सकता है। बाकी नेक्स्ट टॉपिक में जो हम लिस्ट देखने जा रहे हैं तो वहाँ पे ये काम हम बहुत आसानी से कर सकेंगे। हम यहाँ पे करना क्या चाह रहे थे कि नेम 0 पे हम वैल्यू को मॉडिफाई करना चाह रहे थे, हम वहाँ पे वैल्यू M रखना चाहते थे। तो दैट इज़ नॉट गोइंग टू वर्क विथ स्ट्रिंग। जो नेक्स्ट टॉपिक है लिस्ट, उसमें आप देखेंगे कि यही स्ट्रिंग जैसे ही सारे ऑपरेशन उसमें होते हैं एंड वी कैन मॉडिफाई द वैल्यू ऑन पोजीशन। तो होप यू ऑल अंडरस्टैंड इट। इन केस ऑफ एनी डाउट प्लीज़ कॉन्टैक्ट। थैंक यू।